So photoelectric effect by Albert Einstein. अब this is मतलब ये एक्चुअली आया तो बोर्स मॉडल के पहले था. दैट वाज अ प्रिकर्सर ऑफ बोर्स मॉडल व्हिच हेल्प बोर टू postulate his atomic model. Findings क्या थी इसकी? Basically photo and electric. What he found is metal surfaces के ऊपर, ठीक है, metal surface के ऊपर अगर मैं light को incident करता हूँ तो what I find is it eject electrons. ठीक है, किसी भी metal surface के ऊपर अगर मैं photon यानी एनर्जी डालता हूँ, फोटोन डालता हूँ, ठीक है, अगर मैं फोटोन डालता हूँ तो यहाँ से क्या इजेक्ट होएगा? यहाँ से इजेक्ट होएगा एक इलेक्ट्रॉन. ठीक है, इस इफेक्ट को बोला उसने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट. इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन अपॉन इंसिडेंटिंग फोटॉन्स ऑन अ मेटल सरफेस. यू हैव रिटन. सर ये तो वैसा ही है ना कि मतलब एटम के अंदर एक सर मतलब रेडिएशन को सर मतलब हमने प्रोड्यूस किया तो फिर वो सर एक्साइटेड होके सर फिर वो पिछले वाले ऑर्बिट में जाता है. हाँ, सी एक्चुअली इसको दो तरीके से, इसी से पहले मैं पढ़ाता था तो इसको पहले ही पढ़ाता था आइंस्टाइन इफेक्ट को, ठीक है, और बोर्स मॉडल बाद में बताता था. इस बार तुम लोगों के साथ मैंने थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट किया. आई एम टेलिंग दिस इफेक्ट आफ्टर बोर्स मॉडल, ठीक है. तो ये एक्चुअली बोर्स मॉडल का प्रिकर्सर है. 1905 में इसको आइंस्टाइन जी को इसके लिए ही 1905 में नोबेल प्राइज मिला था. 1905 फिजिक्स नोबेल प्राइज वेंट टू आइंस्टाइन फॉर दिस पर्टिकुलर इफेक्ट, फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट, ठीक है. तो ऑब्वियसली थियरी जो थी 2-4 साल और पहले आई थी, 1902 में आई थी, 2-3 में आई थी. और बोर्स का मॉडल जो था दैट केम इन 2022 में. सो ऑब्वियसली ये काम पहले हुआ था और इसी को देख करके, इसी को बेसिस ले करके बोर्स ने अपना मॉडल तैयार किया, ठीक है. इफेक्ट ये क्या था? इफेक्ट वाज वेरी सिंपल. दिस थियरी account for emission of electrons from metal surface when it is illuminated 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 with
wave vacuums. ठीक है, अब इस theory में therefore these are called as, this is called as, the theory is called as photoelectric effect. ठीक है, एंड इलेक्ट्रॉन्स जो बाहर निकलते हैं उनको बोलते हैं हम लोग, so for this theory Einstein got a, yes, he got a Nobel Prize for this theory only. This was the theory which lent him the Nobel Prize. ठीक है, and the other theory which he proposed, the greatest of all, theory of relativity, that landed him in controversies. ठीक है, it is one of the greatest theory which has been discovered so far in the realms of science. ठीक है, बट इस थ्योरी के लिए आइंस्टाइन को सिर्फ कंट्रोवर्सीज मिली है. It is only after 60, 70, 80 years when we really realized the great significance and importance of this theory. ठीक है, 30-40 साल तो कम से कम लगे हम लोगों को assimilate करने में, not us as a common people, but the scientists, reams of scientists, उनको ये रियलाइज करने में, इसके साथ इस चीज को एसिमुलेट करने में, they took at least 40 years. So for 40 years he was like, this is something which always used to create trouble for the Einstein. ठीक है, this theory accounts for emission of electrons from metal surface when it is eliminated with photons. The eliminated photons, sorry, the emitted photons, sorry, the emitted electrons are termed as photoelectrons. ठीक है, and the current due to flow of these photoelectrons are known as photo current. Is this okay? So there is photocurrent, there is photoelectron. The entire process is called photoelectric effect. ठीक है, the phenomena of the phenomena of, and the phenomena is termed as photoelectric effect. ठीक है, this effect actually served as a, you can say, experimental. हाँ हाँ मैं लेके जा रहा हूँ. This theory या this experiment actually helped us to realize the quantization process as explained by ये Planck. ठीक है, quantization of energy of radiations as explained or captured by
Planck was experimentally demonstrated through this particular theory, ठीक है, या this particular experiment, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एक्सपेरिमेंट, ठीक है। और इसमें क्वांटाइजेशन एक एंड पर हम लोगों को मिल रहा है और दूसरे एंड पर इट बिकेम प्रिकर्सर ऑफ बोर्स थ्योरी, ठीक है। जैसे वहां पर जैसे हाइड्रोजन एटम के ऊपर 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का अगर हम डालते हैं रेडिएशन तो वो बाहर निकल जाएगा, ठीक है। तो इसी तरीके से इसमें भी कुछ कुछ पॉस्टुलेट्स दिए हुए हैं, पॉस्टुलेट्स नहीं है इसमें, कुछ एक्सप्लेनेशंस या कंक्लूजन्स हैं इस एक्सपेरिमेंट के, ठीक है। पहले एक्सपेरिमेंटल सेटअप क्या था वो हम लोग समझ लेते हैं। एक्सपेरिमेंटल सेटअप के बाद देन आई विल एक्सपोज यू टू द फाइंडिंग्स ऑफ द एक्सपेरिमेंट एंड देन ऑन द बेसिस ऑफ दैट conclusions of the experiment, ठीक है। So we are going to read it in three ways. Suppose ये मेरा metal plate है, metal plate है, metal plate को हम print कर लेते हैं। And metal plate is obviously going to be connected to a wire, और यहाँ पर आएगा हमारा this is a radiation of mu and lambda, ठीक है। वेवलेंथ लैम्डा एंड फ्रीक्वेंसी म्यू, ये इसको हिट करता है और हिट करता है जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन्स हमको निकलता हुआ दिखता है। इलेक्ट्रॉन्स आर गोइंग टू गेट इजेक्टेड, इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट हुए तो इनको कैप्चर करेगा कोई ना कोई, राइट। तभी तो हमको पता चलेगा कि इलेक्ट्रॉन निकले, नहीं तो हमको पता कैसे चलेगा इलेक्ट्रॉन निकला, राइट ना। हाउ कैन वी नो, राइट। तो यहाँ पर एक कलेक्टर प्लेट हम लोग डालेंगे, this is going to be our collection plate. It should be again connected to something. अब इस डायग्राम को आप लोग को कंप्लीट करना है, मैं कुछ चीजें हैं जो कि नहीं लिख रहा हूँ, I'll assign you guys to complete it, ठीक है। जो बहुत सी एसेंशियल चीजें हैं उनको मैं बना दे रहा हूँ, बाकी सेटअप आप कंप्लीट करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर मुझे बैटरी डालनी है, ये क्या है मेरा एमीटर है, एमीटर है, ठीक है। एमीटर मैं यहाँ पर डालूंगा, वेरी गुड, ये तो पता चल गया आप लोगों को। बैटरी में मैं यहाँ पे कौन सा टर्मिनल डालूं? सर नेगेटिव टर्मिनल टुवर्ड्स राइट साइड, पॉजिटिव टू लेफ्ट। क्यों? सर बिकॉज एमीटर जब भी करंट से कनेक्टेड रहता है तो वो पॉजिटिव से पॉजिटिव टर्मिनल कनेक्टेड रहता है, और तो हम लोग अगर लेफ्ट साइड में डालेंगे तो फिर मतलब कि पूरा जो एमीटर की तरफ ऊपर की तरफ से आएगा। अच्छा, मतलब तुम ऐसे बोल रहे हो कि ये ऊपर डाला है मैंने इसकी वजह से, चलो मैं हटा देता हूँ इसको नीचे की तरफ डाल देता हूँ। अब बताओ किधर डालें? सर अब नेगेटिव। सर एमीटर मतलब सर ये आप मतलब ऊपर नहीं ऐसे रहेगा तो
सर नहीं ऐसे नहीं, मैं बोल रहा था कि वो ऐसे कनेक्टेड है क्योंकि मतलब कि वो ऐसे कनेक्टेड है कि जैसे अगर हम लोग लेफ्ट नहीं हैंड साइड में यहाँ पे डालेंगे। अच्छा छोड़ो, अभी अभी मेरे क्वेश्चन का आंसर करो। अगर वो कंफ्यूजन है तो अभी के लिए रहने दो अपने दिमाग में। अ, अब ये आपको पता चल गया कि वो वैसे आंसर नहीं करना है। अमीटर है यहाँ पर, उसमें डिफ्लेक्शन कैसे होना है वो बाद में देखेंगे हम, ठीक है। दैट इज नॉट समथिंग विच इज गोइंग टू टेल यू कि पोलैरिटी ऑफ बैटरी जो होगी वो किधर रहेगी, ठीक है, कौन सा पॉजिटिव रहेगा नेगेटिव रहेगा। देयर इज समथिंग एल्स जिसको कि आपको सोचना है, और वो आप सोच पाते हो कि नहीं वो मुझे देखना है, ठीक है। मैं बैटरी की पोलैरिटी कैसे रखूंगा, कौन से प्लेट को पॉजिटिव प्लेट से, पॉजिटिव साइड ऑफ द बैटरी से कनेक्ट करूं। सर इलेक्ट्रॉन वो उधर ये हो रहा है सर हाँ इलेक्ट्रॉन क्या सर हो ये रहा है, राइट साइड इलेक्ट्रॉन में निकल पॉजिटिव रहा है। है, यहाँ से निकल रहा है, ओके। ठीक है। अब मुझे बताओ, राइट सर साइड में फिर पॉजिटिव पॉजिटिव है। राइट हैंड साइड पे रहेगा। पॉजिटिव हाँ राइट हैंड साइड पे रहेगा, परफेक्ट, ठीक सर है। क्योंकि इलेक्ट्रॉन उस साइड अट्रैक्ट होगा फिर मतलब क्योंकि नेगेटिवली चार्ज तो फिर पॉजिटिव साइड को हाँ वेरी गुड वेरी अट्रैक्ट गुड, होगा। यही यही मुझे चाहिए था, ये सोच पा रहे हो आप लोग तो आई एम हैप्पी, ठीक है। सो इसको इस तरीके से बैटरी पे मैं कनेक्ट करूंगा। ये पॉजिटिव प्लेट होएगा, ये रहेगा नेगेटिव प्लेट, ठीक है। और अब करंट को जिस डायरेक्शन में, ऑब्वियसली करंट को हमेशा क्या करना होगा, ये इलेक्ट्रॉन इधर से आएगा, इधर ऐसे घूमेगा, ऐसे सर्किट में घूम रहा है, ठीक है। तो करंट हमारा इधर से ऐसे फ्लो करेगा, ठीक है। करंट विल फ्लो लाइक दिस एंड इलेक्ट्रॉन विल फ्लो लाइक दिस, राइट। कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। और एमीटर का डिस्प्लेसमेंट हम लोग इस तरह का शो कर लेते हैं। वैसे ये इधर जाएगा, इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। हमें सिर्फ इस बात से फर्क पड़ता है कि जब हम रेडिएशन डालते हैं तो इससे इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स निकलता है, वो पॉजिटिव प्लेट पर कलेक्ट होता है और ये सर्किट कंप्लीट हो जाती है, या फिर बल्ब जल जाता है, ठीक है। एक बल्ब भी इधर लगा करके, स्विच और बल्ब लगा करके रखेंगे तो बल्ब जलने लगेगा, या आमीटर में डिफ्लेक्शन होने लगेगा, तो वी कैन से दैट हमारा सर्किट जो है वो हो गया है कंप्लीट, ठीक है। विदाउट हैविंग एनी फिजिकल कॉन्टैक्ट in between these two plates, the circuit is still complete, ठीक है। That can only happen if electron is able to travel from this plate to this plate even without any assistance, और ठीक है। So अब अभी क्या था कि आइंस्टाइन क्वेश्चन हिमसेल्फ, क्या ये हर रेडिएशन पर हो जाएगा, मतलब किसी भी फ्रीक्वेंसी का डालूंगा तो होगा क्या, इलेक्ट्रॉन मिलेगा मुझे, फोटो इलेक्ट्रॉन मिलेगा। He got answer no. He experimented with multiple frequencies for a given metal surface and he found that no. There for every individual metal I am having a threshold frequency, threshold मतलब minimum frequency जिसके बाद ही फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट शो कर पा रहा है वो मेटल, ठीक है। अगर उस थ्रेशोल्ड से कम फ्रीक्वेंसी का ले रहे हैं हम रेडिएशन, तो नो मैटर मैं कितने भी रेडिएशंस डालूं उस थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम वाले, और कितनी भी देर तक डालूं, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स जो है वो इजेक्ट नहीं हो रहे हैं। मेकिंग सेंस, मतलब थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के ऊपर के रेडिएशंस अगर मैं डालता हूं तभी मेरा इस पर्टिकुलर मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन निकलेगा, अदरवाइज नहीं निकलेगा। मेकिंग सेंस। तो ऐसा एक थ्रेशोल्ड कॉन्सेप्ट उसके पास आया जिसको उसने मेटल वर्क फंक्शन या थ्रेशोल्ड एनर्जी के नाम से बोला। थ्रेशोल्ड एनर्जी, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी या वर्क फंक्शन, ठीक है, ये अलग अलग टर्म्स हैं। लैम्डा एंड न्यू को एक्चुअली हम एनर्जी, इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स वगैरह में डिस्प्ले कर सकते हैं। तो करस्पॉन्डिंग एनर्जी जो होगी उसको थ्रेशोल्ड वोल्टेज या फिर वर्क फंक्शन
बोलते हैं, ठीक है। मतलब हर लैम्डा को या हर न्यू को एक्चुअली में जो भी न्यू होगा उसको hc by लैम्डा या h न्यू के हिसाब से आई कैन कन्वर्ट इट इनटू जूल्स। जूल्स को मैं फिर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट कर सकता हूँ, ठीक है। तो किसी भी न्यू लैम्डा नॉट या न्यू नॉट के करस्पॉन्डिंग जो ये वोल्टेज आएगा, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन वोल्ट जितना भी आएगा उसमें से इलेक्ट्रॉन को हटा दिया तो वोल्टेज बचेगा। ये वोल्टेज को हम लोग थ्रेशोल्ड वोल्टेज बोलते हैं, ठीक है। सो सेम चीज को मल्टीपल वेज में प्रोनाउंस करते हैं हम अंडर दिस थियरी। द की फैक्ट इज जो एनर्जी ऑफ फोटोन आ रहा है दैट शुड बी लार्ज इनफ टू मेक एन इलेक्ट्रॉन कम आउट ऑफ द सरफेस, ठीक है। इज इट ओके ये वाला पार्ट तक? सर मुझे एक छोटा डाउट है। बोलो ना। सर आपने बोर्स मॉडल में एक बार बोला था कि इलेक्ट्रॉन में से जो भी निकल रहा है, मतलब जो एनर्जी निकल वो इक्विवेलेंट टू 1 फोटोन, मतलब एक पैकेट फोटोन एक इलेक्ट्रॉन से निकलेगा। हाँ, फोटोन से एनर्जी एक इलेक्ट्रॉन, मतलब एक इलेक्ट्रॉन के ट्रांजिशन से एक ही फोटोन एनर्जी निकलेगा, और एक फोटोन एनर्जी जो होगा वो हमेशा एक ही इलेक्ट्रॉन को एनर्जी ट्रांसफर करेगा। दैट इज गोइंग टू बी द फाइंडिंग ऑफ दिस थियरी। वो अभी मैं आपको बता रहा हूँ, जस्ट सेकंड वाला वही चीज होता है। पहला वाला समझने के बाद, थ्रेशोल्ड समझने के बाद दूसरी चीज एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, और फिर तीसरी चीज जो होती है वो वही होता है जो मैं बताऊंगा इसके अंदर। हाँ बोलो, और कोई डाउट? तो वो अभी आने वाला है 5 मिनट। सर और एक छोटा डाउट। बोलो ना। सर वो थ्रेशोल्ड वाले में इलेक्ट्रॉन मतलब कैसे निकाल देंगे, राइट? कैसे निकाल देंगे मतलब एनर्जी कंजर्वेशन होता है, बताऊंगा अभी। अभी मैं सिर्फ एक्सपेरिमेंटल सेटअप बता रहा हूँ, ठीक है। वो सारे फेनोमेना को मैं एक्सप्लेन करूंगा, डोंट वरी। सर ये राइट साइड में येलो में लिखा है सर, ये फिर से मतलब बताना। क्या हुआ? सॉरी नहीं समझा, मुझे फिर से सर बोलो। राइट साइड में येलो से सर लिखा है h इज इक्वल टू जूल्स से सर इलेक्ट्रॉन वोल्ट इसमें से सर इलेक्ट्रॉन। अरे एच न्यू जो है वो जूल्स में एनर्जी बनेगा, जूल्स को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं ना, हाँ सर उसके राइट। बाद क्या बोला इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स पे? इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स के बाद कुछ नहीं, इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स के बाद बस मैंने बोला कि ये इलेक्ट्रॉन को अगर हटा दूं तो सिर्फ ये वोल्टेज मिलेगा, यानी ये यहाँ पर जो एनर्जी है वो ऐसे बोल सकता हूँ मैं कि एक इलेक्ट्रॉन इस पोटेंशियल डिफरेंस से एक्सेलरेट कर रहा है तो उसको उतनी ही एनर्जी मिलेगी जितना यहाँ पर मिल रहा है, राइट। अगर इस v पोटेंशियल डिफरेंस से एक इलेक्ट्रॉन को मैं मूव कराऊं तो जितना इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऑफ एनर्जी यहाँ पर मिल रहा है उतना ही एनर्जी इस इलेक्ट्रॉन के पास भी हो जाएगी। तो वो इक्विवेलेंस शो करने के लिए। ठीक है, इज इट ओके? हेलो। सर उसको आपने कुछ टर्म बोला था थ्रेशोल्ड। हाँ वो मैं बोलता हूँ, सब लिखवाता हूँ, डोंट वरी। अभी बहुत सारी चीजें इसमें लिखनी है, आई विल मेक यू राइट इट डाउन, ठीक है। अभी सिर्फ एक चीज मैंने बताया कि यहाँ पर उसने ऑब्जर्व किया, पहला क्वेश्चन उसके दिमाग में आया कि इज इट गोइंग टू बी पहला क्वेश्चन उनके दिमाग में आया कि रेडिएशन, क्या हर रेडिएशन के साथ ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे? एंड द आंसर ही गॉट इज नो, with not every radiation but only radiations having frequencies greater than certain minimum frequency will be eligible to bring out an electron from a metal surface, ठीक है। और वो जो मिनिमम फ्रीक्वेंसी की वैल्यू है वो हर मेटल सरफेस के लिए अलग अलग है, ठीक है। दैट इज अनदर थिंग व्हिच ही फाउंड, दैट वाज एक्सपेरिमेंटल फाइंडिंग। दूसरी चीज, हाँ बोलो।
सर कौन सा मेटल सरफेस के साथ आप एक्सपेरिमेंट किया? अलग अलग मेटल सरफेस के साथ करेंगे. इट वाज नॉट वन. ही एक्चुअली एक्सपेरिमेंटेड विद मल्टीपल मेटल सरफेसेस. तभी तो पूरी थ्योरी आएगी ना. ठीक है. सो इट वाज नॉट जस्ट वन. जैसे गोल्ड फॉइल में गोल्ड के ऊपर किया गया था, वैसे ऐसा नहीं था कि इसमें बस एक ही मेटल सरफेस के ऊपर किया गया. इसमें इन्होंने एक्चुअली मल्टीपल मेटल सरफेस के ऊपर किया था. हाँ, दूसरी चीज ये थी कि व्हाट वी फाउंड इज अनदर थिंग कि यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, जैसे कोई भी एक रेडिएशन हमने डाला, ठीक है, जिसकी एनर्जी थ्रेशोल्ड एनर्जी, ठीक है, न्यू नॉट से न्यू नॉट जो था वो मेरा थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी था, मिनिमम फ्रीक्वेंसी जहाँ पर इमिशन चालू होता है, और मैं एक रेडिएशन डाल रहा हूँ जो कि न्यू के बराबर है, ठीक है ना, और न्यू के बराबर है, विच इज वेयर न्यू इज ग्रेटर देन न्यू नॉट. मतलब ये रेडिएशन के पास हमारे पास ज्यादा एनर्जी है, इस रेडिएशन के पास हमारे पास ज्यादा एनर्जी है कंपेयर टू द थ्रेशोल्ड रेडिएशन. ठीक है. अब ये जो इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, व्हाट यू ऑब्जर्व कि इट हैज मोर the electron which is getting emitted has kinetic energy. It will obviously possess some kinetic energy, and the maximum kinetic energy which an electron, photoelectron has, the maximum kinetic energy, ठीक है, can be given or is being given by h nu, जो हमने भेजा है रेडिएशन, अरे हम किसको बताओ h nu lambda. न्यूज़ आ रहा है ये सामने आ रहा है। ठीक है. The maximum kinetic energy which electron is going to, the photoelectron is going to possess, was being given by this expression. The third important thing which we came to find out is कि जब ये रेडिएशन का काउंट बढ़ा रहा था ना, मतलब फोटॉन्स पैकेट जो है, रेडिएशन की इंटेंसिटी एक चीज होती है, इंटेंसिटी. इंटेंसिटी बढ़ाने का मतलब ये होता है, इंटेंसिटी बढ़ाने का मतलब नंबर ऑफ फोटॉन्स पर यूनिट टाइम जो है वो अगर मैं बढ़ाऊंगा, फोटॉन पर यूनिट टाइम अगर मैं इंक्रीज करता हूँ तो इंटेंसिटी इंक्रीज. इंटेंसिटी क्या होता है? एनर्जी ट्रांसफर per unit time क्या करो बेटा बड़े per होके unit रोज आपका काम लो area. ये तुम्हारा देखो ठीक है. लैपटॉप के सामने बैठ के काम चालू तो एनर्जी ट्रांसफर पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया ये अगर इंक्रीज कर रहा है तो नंबर ऑफ फोटॉन्स पर यूनिट टाइम जो है वो ये तभी इंक्रीज करेगा जब नंबर ऑफ फोटॉन्स पर यूनिट टाइम इंक्रीज करेगा. द फोटॉन्स व्हिच आर फॉलिंग इज इंक्रीज. जब वो इंक्रीज करेगा तो ये एंटिटी भी इंक्रीज करेगा. तो उसने इस एंटिटी को, इंटेंसिटी जो एंटिटी थी, इसके अगेंस्ट और यहाँ से निकलने वाला है, यहाँ पे जो करंट फ्लो कर रहा था सर्किट में ना, उसको प्लॉट किया. एंड ही फाउंड दैट कि जब मैं इंटेंसिटी को बढ़ाता हूँ, यानी नंबर ऑफ फोटॉन्स, फॉलिंग फोटॉन्स पर यूनिट टाइम को मैं इंक्रीज करता हूँ, तो मेरा करंट जो है वो इंक्रीज करता है.
और जब मैं फोटॉन्स के काउंट इंटेंसिटी को डिक्रीज करता हूँ तो मेरा करंट जो है सर्किट में वो डिक्रीज कर रहा है। मतलब incidented photon intensity photon intensity was proportional to photo current। ठीक है, फोटो करंट और इलेक्ट्रॉन्स फोटो इलेक्ट्रॉन्स यानी ये अगर ज्यादा होता है तो ये भी ज्यादा रहेगा, ये अगर कम हो रहा है तो ये भी कम रहेगा। अच्छा, ये डायरेक्ट प्रोपोर्शनैलिटी जो है ना वो एक्चुअली डायरेक्ट नहीं है, इट ओनली शोज दैट दे आर प्रोपोर्शनल। देयर इज नो डायरेक्ट प्रोपोर्शनैलिटी एज सच, बट दे आर प्रोपोर्शनल। Sir, what does it mean? प्रोपोर्शनल का मतलब जैसे देखो इंटेंसिटी को 5 यूनिट रखा है मैंने, 5 यूनिट से 15 यूनिट लेकर के, ठीक है। तो करंट मान लो 5 यूनिट पर मेरा 1 यूनिट था और 15 यूनिट होने पर अगर 3 यूनिट हो जाता है करंट तो देन आई एम गोइंग टू से दैट इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, राइट। बट 5 यूनिट पर 1 यूनिट है, 15 यूनिट पर अगर 2 यूनिट रहता है या 5 यूनिट हो जाता है तो आई विल नॉट से दैट दे आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, आई विल से सिंपली दैट दे आर प्रोपोर्शनल, राइट। ये बात समझ में आ रही है? Yes, sir. ठीक है। So there was proportionality between photocurrent and incidental photon intensity। डायरेक्ट प्रोपोर्शनैलिटी जो है वो नहीं था, बट डिपेंडेंसी था, देयर वाज क्लियर डिपेंडेंसी। इंसिडेंटेड फोटोन इंटेंसिटी एंड फोटो करंट में देयर वाज डिपेंडेंसी। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल भी होता है बट फॉर सर्टेन रेंजेस, नॉट फॉर एंटायर जोन। ठीक है, इसमें एक जोन होगा जिसके अंदर वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल भी होगा, आई विल एक्सप्लेन दैट। और ये जोन भी उन्होंने फाइंड आउट किया था और इसी जोन के बेसिस पर 1-to-1 रिलेशनशिप जो है ना इलेक्ट्रॉन एंड फोटोन का, दैट वाज गॉट एस्टैब्लिश्ड। ये प्रोपोर्शनैलिटी जो है इस जोन में मिलती है, उसी के बेसिस पर इलेक्ट्रॉन एंड फोटोन की 1-to-1 रिलेशनशिप जो है दैट गॉट एस्टैब्लिश्ड। मेकिंग सेंस? अब वो कैसे होगा मैं बताऊंगा। सर मतलब ये जो रेंज है, बोलिए। सर मतलब ये जो रेंज है उसके अंदर ही इंसिडेंटल फोटो इंटेंसिटी इज प्रोपोर्शनल टू फोटो करंट, और जो बाकी की रेंज है उसके अंदर मतलब इनवर्सली प्रोपोर्शनल है इसका। नहीं, यू आर रॉन्ग। इसके ऊपर ही ये सारी चीजें ऑब्जर्व होंगी, इसके नीचे अगर रहेगा तो कुछ भी ऑब्जर्व नहीं होगा। नो फोटो करंट, नो फोटो इलेक्ट्रॉन, ठीक है। Sir, वो frequency is increased frequency मतलब कि ये V जो है, हाँ V इज ग्रेटर देन V नॉट, तभी ये सारी चीजें होंगी। सर मतलब ये नॉर्मली प्रोपोर्शनल ही रहता है ना ये फोटो करंट से? हाँ बोल सकते हो, एकदम शुरू में और बहुत ज्यादा होने पर ये सिर्फ प्रोपोर्शनल नहीं रहेगा, नॉर्मल जोन में ये प्रोपोर्शनल ही रहेगा, इनफैक्ट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा। नॉर्मल जोन में एकदम शुरू में नहीं रहता है और बाद में भी नहीं रहता है, मिडिल जोन में इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इस जोन में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल फोटो करंट एंड ये फोटो इंटेंसिटी। सर मुझे म्यू नॉट वाला नहीं समझ में आया। उसमें क्या समझ में नहीं आया? म्यू नॉट, हाँ बोलो। लाइक म्यू नॉट का क्या सिग्निफिकेंस है इसमें? म्यू नॉट का सिग्निफिकेंस ये है कि अगर आपको ज्यादा जोर से मैं मारूंगा, ठीक है, तो देयर इज चांसेस कि आपको कट मार्क बने, ठीक है।
अगर मैं धीरे से आपको मारूंगा तो द चांसेस ऑफ यू गेटिंग अ कट मार्क इज मिनिमम, राइट। फिजिकल तरीके से अगर हम सोचे तो इफ अ फोटोन हैविंग हाई एनर्जी इज इम्पिंजिंग, हाई कितना हाई, तो म्यू नॉट जो है, ये म्यू नॉट जो है, इससे ज्यादा फ्रीक्वेंसी वाला अगर कोई रेडिएशन है ना, वो अगर इम्पिंज कर रहा है तो देन इलेक्ट्रॉन विल गेट इजेक्टेड, ठीक है, अदरवाइज इट विल नॉट। अभी समझ में आया क्या थोड़ा सा? हाँ सर। ठीक है ना सर मतलब कि अगर हम लोग जो नॉर्मल रेडिएशन इस पे डाल रहे हैं जो कि उसका फ्रीक्वेंसी न्यू है, और हाँ। अगर हमने उससे ज्यादा उस पे डाला तो फिर वो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो जाएगा। नहीं, दो चीजें, हम जो डाल रहे हैं उसका न्यू है, ठीक है, और ये जितने पर इजेक्ट कर सकता है वो है न्यू नॉट, ठीक है। अगर न्यू नॉट से ज्यादा होगा, ठीक है ना, न्यू अगर न्यू नॉट से ज्यादा हो गया तो फिर इलेक्ट्रॉन इजेक्ट करेंगे, ठीक है। लेकिन अगर न्यू नॉट से छोटा या न्यू नॉट के बराबर है तो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट नहीं होंगे। बात समझ में आ रही है? हाँ सर, अभी समझ में आया। ठीक है। सो न्यू नॉट इज इंडिकेटर ऑफ एवरी मटेरियल, वो मटेरियल की इनहेरेंट कैपेबिलिटी या मेटल सरफेस की इनहेरेंट एबिलिटी होती है, और वो एबिलिटी क्यों होती है बोर्स मॉडल के बेसिस पर एक्सप्लेन होता है थोड़ा सा, ठीक है। न्यूक्लियस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो इलेक्ट्रॉन के ऊपर होता है, वहीं से इनहेरेंट एबिलिटी आती है हर मेटल एटम या मेटल सरफेस के अंदर कि वो अपने इलेक्ट्रॉन्स को ब्लॉक करे, बाहर ना जाने दे, ठीक है ना। इज दिस ओके टू एवरीवन? Yes, sir. ओके, ठीक है। अभी के लिए वी विल स्टॉप। सर ये जो आपने पॉइंट्स लिखे हैं वो